Good afternoon, all. No, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes, good afternoon, everyone. Okay, so shall we start already? 55 students has joined this meet. Okay, meanwhile, all the people can join. We'll start practicing few things. Uh, Let me share the screen with you all. Yesterday, we have started with the solution of a linear differential equation. There are two types. One is the complementary function and another is the particular integral. Yet we have not started with the particular integral. So before we proceed for that, how to find out the complementary function, that we must know. So these are the few problems. I hope the screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So before we come to these problems, let me revise quickly what we did yesterday. So phi of d operated on y is equal to f of x. This we abbreviated as the standard form of our LD. So it's our linear differential equation. And solution of this linear differential equation we determined as y, which is equal to addition of complementary function and particular integral. Am I correct? So to find out this yc, or which is called as the complementary function, and yp, which is called as the particular integral. We have started with this cf, complementary function. So this we determined with the help of this form of differential equation. Phi of d operated on y is equal to 0. And over here, phi of d operated on y is equal to f of x. So these two equations, differential equations, we will be using to get our two parts of the solution. To find out the complementary function, further we elaborated auxiliary equation, which is nothing but the nth degree polynomial equation, whose roots gives us the complementary function. Now, apart from the discussion we did, let me just elaborate one point here. जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने जाओगे ना, ये फाई ऑफ डी आपको कहीं पर भी लिखा नहीं मिलेगा. This particular differential equation gives us complementary function. That is very true. लेकिन जब हम auxiliary equation के बारे में बात करते हैं ना, many standard books denote this auxiliary equation as phi of m is equal to 0. So here d is replaced by m, where m is certain variable you can consider, whereas d is an operator. So logically or mathematically phi of d को हम 0 से equate करते हैं, वो थोड़ा सा absurd है. I'm not saying wrong, but it is absurd. So many of the reference books use this notation also. So don't get confused if you are dealing with any reference books corresponding to few additional things of LD. So I'll just continue with the given notation. Phi of d is equal to 0. So this is your polynomial which can be factorized in this way. D minus m1 first factor, d minus m2 second factor, and so on. D minus mn. Suppose n roots we are having. So corresponding to each of the root, these linear factors we can obtain, and hence the value of d we can assume as m1, m2, and so on mn. Okay. So ये d क्या है? आपके phi of d is equal to 0 का रूट. अगर ये नोटेशन हमने यूज किया तो ये m की डिफरेंट वैल्यूज है, ऐसा हम बोल सकते हैं. Now these values gives you the way to write down the complementary function. So if these values are real and distinct, in that case, first type of note yc we noted as c1 e raised to power m1x plus c2 e raised to power m2x plus and so on plus cn e raised to power mnx. Yesterday I told you that why this format we are going to get, right? Secondly, अगर आपके roots real है and repeated है, in that case
we can write down our yc as, suppose two roots are repeated. So in that case, yc I can write down as c1x plus c2 into e raised to power m1. m1 and m2 अगर repeat हुआ है तो then c3. Yes beta. We have not started recording. Yes, thank you so much. हो गया क्या स्टार्ट? I'll wait a minute, recording start होने देते हैं, then we'll continue. Okay, so तब तक मैं रिवाइज करती हूँ. हमने ये जो चार टाइप्स देखे थे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड. So based on that, कुछ problems हम आज solve करने वाले हैं. So that problems will help us to write down complete solution of our differential equation. Complete solution of any differential equation consists of शुभम. क्यों रिमूव कर? शुभम आप .org से ज्वाइन नहीं हुए हो क्या? 237 रोल नंबर. Okay. Yes. So let me tell you that we are going to solve few problems, but I'm just revising the stuff yesterday we completed. So for real and distinct roots, this is the way to write down the solution. For real and repeated roots, so two roots are repeated, I am considered, and c1x plus c2 into e raised to power m1x, provided that m1 two roots are repeated, which is given by m1 is equal to m2, and then onwards अगर सारे roots आपके non repeated है, in that case c3 I'm sorry c3 e raised to power m3x excuse me c3 e raised to power m3x plus c4 e raised to power m4x plus and so on. So for non-repeated roots, we will be continuing the way of writing as we did for type A. Type C, roots are complex. So complex roots always come in pair. So yc can be written as e raised to power alpha x into c1 cos of beta x plus c2 sine of beta x. This also yesterday we have seen how why we are getting this particular form. This is just because of complex numbers where we have used the Euler's function. Then complex and repeated roots के लिए, suppose alpha plus minus I beta is repeated 2 times. So in that case, your yc can be written as e raised to power alpha x as it is into c1x plus c2 because roots are repeated and that are repeated twice, cos of beta x plus c3x plus c4 into sine of beta x. Another aspect is that आप ये जो x है वो either c1 के साथ लिख सकते हो या c2 के साथ लिख सकते हो, no matter at all. Now based on this, let us try to complete all of these 6 problems. One by one ये सारे 6 problems हम complete करते हैं. Okay, so first problem, all of you note down and try to solve along with me. d cube y upon dx cube minus 7 dy by dx minus 6y is equal to 0. Okay. Shall I go for the problem solution? This is d cube y minus 7d square था ना minus 6y is equal to 0.
Was that square or D only? No, ma'am. D. 70, ma'am. Minus 70. 70. Okay, Minus 70. minus 70. Okay. Okay, so this is your first problem. Now, first of all, write down the auxiliary equation. This is D cube minus 7D minus 6 is equal to 0, right? Now, we don't know how to factorize this directly. So I'm having two options. Either use your calci or use the synthetic division method. Synthetic division method अप्लाई करने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक रूट ढूंढना होगा. कैसे ढूंढते हैं रूट? Assign the values plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on. So this is a trial and error method. So मैं पहले D को 1 पुट अप करके देखती हूँ यहाँ पर. So इस 1 minus 7 minus 6 is equal to 0. नहीं हो रहा है. Minus 7. Yes, minus 1 हो सकता है. Minus 1 यहाँ पर पुट अप करो, ये minus minus plus 7 हो जाएगा minus 6. So addition मुझे यहाँ पर 0 मिल रही है. So D is equal to minus 1 is the root. Yes, ma'am. Is the root, correct? So इसके साथ synthetic division में क्या आ जाएगा? This is 1 minus 7 नहीं. यहाँ पे 0, D square की टर्म नहीं है, minus 7 और यहाँ पे minus 6. So हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर minus 1 के साथ. So this 1 as it is, 1 into minus 1, this is minus 1, addition is minus 1, minus 1 into minus 1, this is plus 1, addition is minus 6, minus 6 into minus 1, this is plus 6, and this is 0. Right? So your factors are D is equal to minus 1 is the root. So factor क्या हो जाएगा? D plus 1. And rest of factor will come from this particular 3 terms. So this is D square minus D minus 6 is equal to 0. अब इसका रूट आप इजीली निकाल सकते हो. D square minus D minus 6 का. This is minus minus plus B plus minus square root of B square, that is 1, minus 4AC. So यहाँ पर क्या आ जाएगा? plus 24. Plus 24. Sorry? Plus 24. मैम minus 24 आएगा. Minus plus हो जाएगा. Minus 20 plus 24. So 25 आ जाएगा यहाँ पर upon 2, right? Yes, ma'am. 1 plus minus square root of 25, that is 5 divided by 2. So ये आ जाएगा plus 6 divided by 2, 3, and minus अगर किया तो minus 2. Is that right? So हमारे roots क्या आ गए? Yes, ma'am. Minus वैसे 1, 3, minus 2. Minus 1, Yes, minus 2, minus one. and 3. Minus 1, minus 2, 3. ट्रू. मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ये रूट्स इसी मेथड से फाइंड आउट करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है. आप कैल्सी का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो. एंड यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन योर yc. C1. अब सारे के सारे रूट्स आपके डिस्टिंक्ट है. C1 e raised to power minus x plus C2 e raised to power minus 2x plus C3 e raised to power 3x. So this is your complementary function, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I hope you will be able now to solve the rest of problems. Shall I go to problem sheet? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, solve the second problem. One by one we'll write down the answer here. So इसका आंसर मुझे मिला है yc is equal to e raised to power c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power minus 2x plus c3 e raised to power 3x. Okay, go for this next problem. 4d square y upon dx square plus 4 into dy by dx plus 5y. आप सब कैल्सी कैसे यूज करना है जानते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then go for the second problem. Imaginary roots आ रहे हैं मैम. Yes. Imaginary So, roots. मैम minus half minus I minus half plus I. minus half plus minus I. I. Yes, ma'am. Okay. I. Yeah, that's right. That's right. Okay. Now solution can be written as yc is equal to. It's your alpha And plus minus I beta. Minus 1 by 2 भी आएगा मैम इंटीजर में. यहाँ पर भी. Comma minus 1 by 2.
कॉमा -1/2 कैसे इंटीजर में? मतलब सिर्फ कॉम्प्लेक्स और एक रियल रूट भी रहेगा ना? नहीं ना, कैसे दो ही रूट रहेगा ना, दो ही रूट रहेगा ना मैम The क्वाड्रेटिक के। Yes, ma'am, yes. important concept is that जब कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट आएगा वो अकेला नहीं आएगा, उसका Yes, ma'am. कॉन्जुगेट साथ में होगा। तो दो रूट्स यहीं पर मिल गए ना हमें, Yes, -½ + i एंड -½ -i। ओके। ठीक है, ओके। तो y से कैसे लिखेंगे यहाँ पे? कॉस अल्फा साइन बीटा वाला होता है ना मैम, कॉस अल्फा साइन बीटा। यस, e raised to -½ करेक्ट, इनटू कॉस C1 cos कॉस beta x, C1 cos x plus C2 sin x. cos of x. यस, c1 cos of x + c2 sin of x। साइन ऑफ एक्स। क्योंकि बीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पर है 1 एंड अल्फा की वैल्यू है -½ तो आपका yc जो होगा वो ऐसे होगा। वेरी ट्रू, दैट्स राइट। सबको आ गया ये? Yes, ma'am. या थर्ड प्रॉब्लम। मैम हाँ, मैम इमेजिनरी के लिए yc का फॉर्मूला आप रिकॉल करा सकते हो मैम, मतलब रिवाइज। यस यस यस, चलो कराते हैं रिवाइज एक बार। एक मिनट, कैसे निकाला है वो रिवाइज करना है, राइट? यस मैम। मैम निकालना आता है मैम, पर रिप्रेजेंट लिखते कैसे ना मैम वो पता लगाना है, मतलब एग्जैक्ट। चलो हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, 3 - 2i। ठीक है, तो यहाँ पर इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए yc कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसे अल्फा प्लस i बीटा में इमेजिन करना है कि ये क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। अल्फा की वैल्यू दोनों e raised to 3x। 3 हाँ, एंड बीटा की वैल्यू क्या है? 2। डोंट कंसीडर दिस प्लस माइनस साइन हियर। यस मैम। So e raised to power alpha x ये आपका फर्स्ट टर्म है इनटू c1 cos of beta x प्लस c2 sin of beta x, राइट? तो यहाँ पे क्या मिलेगा? e raised to power -½ x एंड यहाँ 3x मैम, e to the power 3x आ गया ना। 3x मैम। आपने 3x, यस। तो c1 cos of 2x 2x and प्लस c2 sin of x। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। यस। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम हो गया हमारा। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। रूट्स मुझे बता दो, कोई यहाँ पर कितने रूट्स आते हैं? 3 roots। ओके, यहाँ पर एक रफ प्रेडिक्शन क्या बन सकता है? आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्यूबिकल पॉलिनोमियल बनेगा। यस मैम। तो मेरे Yes, पास ma'am. दो ऑप्शंस है, सारे के सारे रूट्स रियल हो सकते हैं या एक रूट रियल होगा, दो रूट कॉम्प्लेक्स होगी। Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. इसके रूट 0 और प्लस माइनस Plus minus i. Yes, ma'am. Yes, 0 ma'am. i and minus i. Take 0 0 i minus i minus minus i। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। नहीं, कैसे? कैल्सी से मैम आ रहा है। कैलकुलेशन मैम यही आता है ना मैम, क्योंकि हाँ। dq plus dq plus y. dq प्लस dq + 1 एक बार ठीक से देखो कैलसी से। Ma'am, it is -1 and plus minus √3i/2. एक ही मिनट, I'll just note down it। हाँ, -1 And 1 plus minus √3i/2. More divided. यस मैम। हाँ हाँ आला आपका 0 नहीं आएगा। ये क्यों पता चला मुझे? क्योंकि यहाँ पर d नहीं है, राइट? 0 तभी आएगा जब आपका d यहाँ पर आ जाएगा। हम उसको dy कंसीडर किया, इसके लिए वो हाँ, 0 d cube minus और this माइनस किया। प्लस i आ गया। dq Yes. minus d गया। सो यहाँ पर शायद ना कैल्सी का मोड सही नहीं होगा, तो इन दैट केस ये गलत हो सकता है। तो एक बार मोड चेक कर लेना। ओके, सो yc क्या आ जाएगा आपका? पहले डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट के लिए लिख लेते हैं। c1 e raised to power -x, सही है? यस मैम। प्लस अब ये कॉम्प्लेक्स रूट, और यहाँ पर आप ना थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि अल्फा क्या है आपका एंड बीटा क्या है। 1/2 अल्फा है और बीटा √3/2। यस, 1/2 एंड दिस इज √3/2। 3/2. करेक्ट। सो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? e raised to power अल्फा ½ x into
C1 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम, C2 cos of √3/2x प्लस C3 sin of √3/2x। आ गया सबका? Yes. यस मैम। यस, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। Yes. या नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ के लिए आप डायरेक्टली फैक्टर तो निकाल सकते हो। पहले इसका फाई ऑफ डी क्या है? फोर्थ के लिए मैं यहां पर लिख देती हूँ, फिर इरेज करने वाली हूँ। फाई ऑफ डी इज इक्वल टू 0 क्या है फोर्थ प्रॉब्लम के लिए? डी स्क्वायर मैम डी स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट होल स्क्वायर। यस, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज डी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज वेल एज डी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9। यस तो डी क्या बन जाएगा? प्लस माइनस √3i। सिमिलरली यहाँ पर भी डी स्क्वायर को -9 लिखा मैंने, इज इक्वल टू -9, तो डी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √3i। सही है ये भी? No, ma'am. Instead of √3, it should be. मैम इट्स ओनली मैम 3i मैम 3i 3 आएगा। ओके यस, 3 आएगा। हाँ 3 है। Yeah, that's right. 3i. Now observe. Roots are complex and Similar. Repeated. similar, repeated. तो हमारा YC कैसे आएगा? मैं YC फोर्थ के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ। YC क्या आएगा फिर? अल्फा क्या है? अल्फा 0 है ना। 0. अल्फा इज इक्वल टू 0। बीटा क्या है? बीटा 3 Plus minus 3. एंड वो भी रिपीट हो रहा है, इसलिए आपका ये क्या आएगा? e raised to power 0x x बार 0x into मैम c1 into x c1x plus c2 Plus C2 into cos 3x into cos of 3x cos of 3x plus plus c2x Plus C3x Sorry, C3x plus C4 into sin of 3x. into sin 3x वेरी ट्रू। तो ये है हमारा आंसर फोर्थ प्रॉब्लम का। समझ में आ गया सबको? मैम बीटा के साथ साइन नहीं लेना है ना, प्लस या माइनस? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नाउ गो फॉर द फिफ्थ एंड सिक्स्थ। I'm so sorry. Yes. ओके, फिफ्थ में कितने रूट्स मैम आएंगे? ये प्लस और माइनस 2 मैं प्लस माइनस 2 आ जा रहा है मैम फिफ्थ के लिए। Sorry? प्लस माइनस 2 है मैम, प्लस माइनस 2 है। ओके, एक ही मिनट। इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या? अगर आपके कैल्शियम में मैम ये सीधा ये मैम डी स्क्वायर प्लस एक ही मिनट, मैं इसका बताती हूँ। मुझे सिर्फ कोएफिशिएंट सही से बताना एक बार। ये फिफ्थ वाला प्रॉब्लम है हमारा। d raised to 4y plus 8 plus 8 d square square y plus 16 plus 16y y is equal to 0 0. ठीक है। ओके, तो फाई ऑफ डी आपका यहाँ पे बन रहा है d raised to 4 4 plus 8d square plus 16 equal to 0. यस। सो ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड आउट करना मेरे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। एज वेल एज अगर आपके कैल्शियम में ये प्रोविजन नहीं है कि फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मिलता है, तो वो भी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। सो इन दैट केस क्या कर सकते हैं हम? मैम ये Ma'am, so डी स्क्वायर प्लस 4 का
m पुटअप करो, x पुटअप करो, कुछ भी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा m² प्लस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट आ जाएंगे। यहाँ पर बोलो m की वैल्यू क्या आती है? दिस इज m प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Yes, ma'am. M plus 3. सो Yes, ma'am. And roots will be plus or minus 2i. Yes, ma'am. 2i नहीं, 2i नहीं आएगा, 2i आएगा, 2i plus minus 2i. Plus minus 2i plus minus 2i. 4 roots. 2i आएगा ना, because d square है ना उसके। यस, सो m को यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो माइनस d स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 2i। तो सिमिलरली जैसे हमने फोर्थ का सॉल्यूशन लिखा, यहाँ पर आप फिफ्थ का लिख सकते हो। सो दिस इज e रेज़ टू पावर अल्फा की वैल्यू क्या है? 0. 0. C1 C1 plus C2 into Cos of cos 2x. Cos 2x plus C3x plus C3x plus C4 C4 sin of 2x. sin of 2x. ठीक है, आ गया ये भी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now last one. Okay, apart from the 6 problems ना, PPTs में कुछ अलग problems है, तो वो एक बार देख लेना आप। Yes, यहाँ पे मैं इसका solution यहीं पर लिखती हूँ। 5 भी बताओ मुझे इसका। मैम वो 6 वाले में मैम dx क्यूब लिखा है मैम d नीचे। to the power 6 plus 6 d raised to the power 4 plus 9d 9 square. into d raised to d square is equal to 0. And Correct. d square common आ रहा है ना? Yes. So इसे फिर से सिमिलर वे में आप कर सकते हो। तो d की वैल्यूज क्या आ रही है? 0,0 दो बार, Yes, ma'am. 0. एंड यहाँ से क्या आ जाएगी d की वैल्यू सिंप्लीफाई करके? दिस इज d स्क्वायर को m रख दो, x रख दो, तो x Ma'am, 3 d plus 3 Plus or minus root 3i. करेक्ट। सो प्लस माइनस रूट 3i और ये रिपीट होगा, राइट? Yes, ma'am. 2 बार. Yes, ma'am. यस, तो yc क्या आएगा यहाँ पर? y से आएगा e to the power 1 plus 1 इन दोनों के लिए आएगा ना? लिखिए पहले। 1 plus 1 ना, मतलब 2 सॉरी, इट्स नॉट ऑडिबल, इसलिए 0 के लिए लिखते हैं पहले। e raised to 0 ना मैम? 1 plus 1 2. हाँ नहीं ना, C1 के फॉर्म में लिखना है ना हमें, दो रूट से तो हाँ, yes, दो ma'am. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने चाहिए। Okay, हाँ, yes, ma'am. C1 C1 plus C2. C1 plus C2, yes, ma'am. C1 plus C2. C1 plus C2 what? X, हाँ, ये same root हाँ, same root. राइट? बराबर, C1 रिपीटेड plus रूट्स के C2. लिए ये हमें पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर लिखना है, इनटू e raised to power 0x। ये लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। Yes, ma'am. प्लस यहाँ पर अल्फा की वैल्यू चेक करो, इज 0। 0. e raised to power 0x इनटू C1x प्लस C2 रिपीट हो रहा है इसलिए cos into of cos root 3. Root 3x. yes, मैम प्लस आप लोग वर्ड से चेंज करना चाहिए ना मैम, क्योंकि उसकी वन पहले एक बार यूज कर चुके हैं मैम। हाँ, पहले ही क्या? C1 C2 पहले use किया ये C3 C4 है ना? ओके, यस यस, C5 and C6, 6 roots, so 6 arbitrary constant, that's true. Yeah. Okay, everybody got this solution now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now few further aspects just I wish to tell you. यहाँ पर मैं एक और प्रॉब्लम देती हूँ। मेरे पास है d raised to power 50y upon dx raised to 50 is equal to 0. इसका yc बता सकते हो मुझे आप इमीडिएटली? ओके, इसके रूट्स क्या होंगे ये बताओ ऑक्सिलरी इक्वेशन के। 0 0 Is equal to 0 0 50 times 0. 50 times 0. 50 टाइम्स 0, राइट? तो yc कैसे आएगा? C 50 constants and e raised to C50 C50 x 49 x raised to 49 to ऐसा 49 C1 x raised to 49 plus C2 x raised to C2 x raised to 48 48 plus C3 x raised to 47 कंप्यूटर सी dot सी C49 आएगा या 50 आएगा यहाँ पे? C49x plus C50 50 आएगा, राइट? Yes, ma'am, 50 आएगा। e raised to power into 0 Power 0x. into power 0x. correct. Okay, now carefully listen my next question. A differential equation
auxiliary equation of a differential equation has these roots: 0, I, 3 plus 2i, and 4 minus 3. What is the order of the differential equation? I repeat my question. Auxiliary equation has roots 7. 7, ma'am. Is that right, everyone? Yes, ma'am. 7. Yes, ma'am. 7. Complex roots will be conjugate. Complex So will come 3 with रियल conjugate. रूट्स है आपके, ये तो फिक्स रहेंगे, लेकिन i अगर रूट है तो माइनस i भी होना ही चाहिए. 3 plus 2i है तो 3 minus 2i भी होना चाहिए. तो ऑर्डर होगी 7. फाइन, समझ में आ गया सबको ये कैसे करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is nothing but your CF, complementary function. Now let us move towards the next part. हमने अब तक सिर्फ सॉल्यूशन का आधा पार्ट किया है, YC. YP हमने देखा ही नहीं है कि ये क्या है. So now we are going to turn to find out our YP. So ये particular PDF मैंने कल क्लासरूम पर एक अपलोड कर दी थी. All of you please go through this. Few additional problems we included over here. Okay. Yes, ma'am. तो ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? यस. एंड नाउ विल कम टू द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो आई जस्ट रिवाइज वंस अगेन. फाई ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू f ऑफ x. ये हमारा LD है. वी हैव डन विद CF which comes from the differential equation where right hand side we are going to put as 0. This is also called as the homogeneous differential equation or LD. Homogeneous LD. And particular integral जो हम इस एक्सप्रेशन के साथ फाइंड आउट कर रहे हैं इसे बोलते हैं नॉन होमोजेनियस LD. Now we are going to focus on this particular part. So जनरल सॉल्यूशन जो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, that is a having two parts, YC plus YP, complementary function plus particular integral. Now to find out the particular integral YP, we are using in this way. 1 upon phi of d is equal to f of x. This comes from this relation only. Y is equal to f of x upon phi of d. But this is just not a ratio. It's not ratio. राइट, ये ऑपरेटर है. फाई ऑफ डी क्या है आपका? ऑपरेटर. सो प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट वेरी वेल. ये आपका ऑपरेटर है, ये आपका कोई फंक्शन या वेरिएबल नहीं है जिसके साथ आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो. इट्स अ ऑपरेटर. लेट मी गिव यू वन नोटेशन हियर. जब मैं dy by dx लिखती हूँ, व्हाट दैट मीन्स, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ y. करेक्ट. एंड जब मैं इंटीग्रेशन लिखती हूँ तो ये इस y का इंटीग्रेशन होता है. एंड एज यू आर नोइंग, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर द रिवर्स प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर. इज दैट राइट? एग्जाम्पल. Yes, ma'am. यस, dy by dx ऑफ x raised to 5 मैंने अगर लिया तो मुझे ये क्या मिलेगा? 5 into x raised to power 4. 5 into x raised to power 4. सो मैंने इसकी रिवर्स प्रोसेस की, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 4 लिया तो मुझे ये क्या मिलेगा? X raised to 5 5. divided by 5. X raised to 5 Upon by 5. 5. Right? So these are the reverse processes of each other. जब मैं ऐसे लिखती हूँ, phi of d operated on y is equal to f of x. And what this phi of d is, it includes the different orders of the differential coefficient d by dx. d by dx के different orders है यहाँ पर. Am I right? Means combinedly, phi of d is following the process of differentiation of y and it gives you f of x. So it is kind of a derivative process operated on y is equal to f of x. And जब हम इसी y को 1 upon phi of d operated on f of x करते हैं तो ये phi of d inverse process में चला जाता है. Getting my point? And this process is the process of integration. And this is the process of differentiation. Means phi of d जब न्यूमरेटर में है
तो वो डेरिवेटिव की प्रोसेस फॉलो कर रहा है, एंड फाई ऑफ डी जब डिनोमिनेटर में है तो वो इंटीग्रेशन की प्रोसेस फॉलो कर रहा है। अब ये डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन की प्रोसेस फॉलो कर रहा है मीन्स व्हाट? सपोज मेरा फाई ऑफ डी है, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ठीक है? तो 1/d² माइनस 5d प्लस 6, ये पर्टिकुलर प्रोसेस, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन प्रोसेस फॉलो करता है मीन्स व्हाट? सपोज ये ऑपरेट हो रहा है cos ऑफ x पर। हमें ये तो पता है कि अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x लिया तो मैं इसका सॉल्यूशन आराम से लिख सकती हूँ कि ये क्या आएगा। लेकिन 1/d² माइनस 5d प्लस 6 ऑपरेटर ऑन cos ऑफ x, ये हम इजीली डिटरमिन नहीं कर सकते विथ यूजुअल नोन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव फॉर्मूलाज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। राइट, तो इसे डिफाइन करने की डिफरेंट शॉर्टकट मेथड्स या जनरल मेथड हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। So particular integral is determined with this particular standard formula, and this justifies the integration process defined in various ways. So ये प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। Now like the complementary function, हर एक स्टेप पर मैंने प्रूफ देने की कोशिश की थी, वैसे यहाँ पर जो तीन मेथड्स हमारे पास है, जनरल मेथड टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल, another is the shortcut method, and last is the method of variation of parameter. जहाँ जहाँ पर possible है मैं proof देने की कोशिश करूँगी, but as we are just having 6 lectures for this particular unit, it will not be possible every time to give you the proof. But if you are interested, I can write down the proof on journal page and I can share that PDF with you all. So first method के साथ start करते हैं, which is called as the general method. This method is applicable, ये किसी भी फॉर्म में अप्लाई हो सकती है, बट हम इसे तभी अप्लाई करेंगे जब शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं हो रही है। ओके, सो एनी टाइम वी कैन अप्लाई दिस मेथड, ये याद रखना। स्पेसिफिकली जब दो आई एम राइटिंग डाउन एनी टाइम, बट स्पेसिफिकली जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं आपके, वहां पर ये मेथड बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है। So in that case, we avoid this particular method and we use the third method, which is method of variation of parameter. लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, ये हम जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो टाइम टू टाइम हर एक मेथड के प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताती जाऊंगी। सो जनरल मेथड पहले पढ़ते हैं। दिस इज डिफाइंड इन दिस वे, एंड ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ फाई ऑफ डी पर। सो केस 1, आपका फाई ऑफ डी जो है वो d माइनस एम एक सिंगल लीनियर फैक्टर के फॉर्म में दिया है। इन दैट केस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा? दिस इज योर फाई ऑफ डी, y ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू f ऑफ x। सो आपका जो फाई ऑफ डी है वो एक लीनियर फैक्टर है d माइनस एम। सो इस केस में CF तो हम निकाल लेंगे, वो इश्यू नहीं है अब, राइट? YP कैसे निकालेंगे? 1/5 ऑफ D ऑपरेटेड ऑन f ऑफ x। सो ये फाइंड आउट करने का तरीका है YP इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर mx इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस mx इंटू f ऑफ x dx। अब ये कहाँ से आ गया? ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। D माइनस m ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू f ऑफ x। सपोज ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट? तो मैं इसे d को d बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। दिस इज dy बाई डी एक्स माइनस m इंटू y इज इक्वल टू f ऑफ x। इज दिस अ LD ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है हमें, e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ m dx। dx. So integration for minus mx, right? Yes, ma'am. So integrating factor के साथ आपका solution क्या आएगा? y into integrating factor e raised to m minus x is equal to integration e raised to power minus mx Minus the mx. integrating factor into right hand side f into Right. dx of x plus C. plus constant c। c integration constant। इसे c1 लिख दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
चलेगा, नो इश्यूज, राइट? सो इस e raised to power माइनस mx से थ्रू आउट द साइड इन डिवाइड करो। y इज इक्वल टू e raised to power mx न्यूमरेटर में आके इंटू इंटीग्रेशन e raised to power माइनस mx इंटू f of x इंटू dx प्लस c1 इंटू e raised to power mx। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख देते हैं। y इज इक्वल टू c1 e raised to power mx, ये हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF है। Yes, ma'am. Yes. यस, राइट? Yes, ma'am. एंड इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें मिला है पहली वाली टर्म ये। सो आपका पूरा सॉल्यूशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स है, वन yc एंड दूसरा yp। अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो yc में हमें आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहा है, लेकिन yp में हमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, करेक्ट? So yc will have number of arbitrary constant which is equal to order of the differential equation, but yp में कोई भी single arbitrary constant नहीं रहेगा, though we are indefinitely integrating the term. This is just because the solution method of first degree first order as we discussed in univariate calculus, and हम सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, 1000 ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ डील करें, लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से। सो इसका जो जस्टिफिकेशन है वो ही जनरलाइज्ड वे में सारे ऑर्डर के LD को अप्लाई होगा। सो ये है हमारा yp एंड ये है हमारा yc। सो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बना है ना, वही फॉर्मूला हमने एक लीनियर फैक्टर अगर आपके पास है तो अप्लाई किया है, जैसे कि आप पीपीटी में यहाँ पर देख रहे हो। See this, e raised to power mx integration e raised to power minus mx f of x dx, same formula we determined here. So ये है आपका yp। अब यहाँ पर बीच में साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर पहली टर्म प्लस की आएगी e raised to power प्लस mx एंड इंटीग्रेशन के अंडर वाली टर्म माइनस आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो क्या करेंगे? तो दिस इज योर सेकंड केस। सो लीनियर फैक्टर इज योर d प्लस m। इन दैट केस ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका yp हमें मिलेगा इस फॉर्मूला के साथ, एंड उसका फॉर्मूला लिखने की ये मेथड है e raised to power माइनस m। अगर बीच का साइन प्लस है तो पहले माइनस m आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर प्लस m आएगा f of x dx। सो फॉर एनी लीनियर फैक्टर आइदर इट इज d minus m or it is d plus m. These are the two ways to write down our general solution to find out the yp. Not general solution, I'm sorry, by general method to find out the yp. ठीक है? थर्ड मेथड, थर्ड केस जनरल मेथड के अंदर ही, अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर दिया जाए, अब आपके पास d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू सर्टन फंक्शन f ऑफ x दिया है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर बन सकते हैं, d माइनस 3 एंड d माइनस 2। तो इन दैट केस हम ये कैसे अप्लाई करेंगे? तो हमारी केस 3 उस वेरिएशन के लिए है। सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड yp फाइंड आउट करने की मेथड है 1/5 of d whatever it is operated on f of x, right? So 1/d minus m1 into d minus m2। तो हमें जो केस 1 एंड केस 2 है उसमें से प्रॉपर केस 2 बार अप्लाई करनी होगी। ऑलराइट, देयर आर 2 मेथड्स टू अप्लाई, आइदर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो या फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। सो दिस इज योर मेथड 1, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। So 1/d minus m1 into d minus m2, न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमें a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 1/m minus m2 a की वैल्यू, एंड b की वैल्यू है -1/m minus m2। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके हमें लीनियर फैक्टर के फॉर्म में 2 टर्म्स मिली है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। एंड अब ये वाला अप्लाई करना है f of x पर सेपरेटली
एंड ये वाला अप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स पर सेपरेटली। तो दोनों के लिए आपकी केस 1 या केस 2 में से कोई एक केस अप्लाई होगी। गॉट इट? सेकंड मेथड है ये जो यहाँ पर लिखी है। अब मैंने 1/d माइनस एम को साइड में रखा, मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ इस सेकंड फैक्टर के साथ एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखो, राइट? एंड जैसे इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है आउटर फैक्टर के लिए फॉर्मूला लिखो। सो ये है आपका सेकंड मेथड। अब ये फॉर्मूला लिखते कैसे हैं मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज पार्ट 2। 1/d minus m1 into d minus m2 operated on f of x. Sorry, so ये है आपका 1/5 of d operated on f of x. ठीक है? तो ये हमें मिलता है इस वे में yp 1/d minus m1, ये मैंने साइड में रख दिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा e raised to power m2x इंटीग्रेशन e raised to power minus m2x into f of x into dx. Am I correct? इसके लिए मैंने पहले अप्लाई कर लिया फॉर्मूला 1, केस 1 अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। नाउ ये जो कुछ भी फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन के बाद वो हम बाद में देखेंगे कि क्या फंक्शन आएगा, लेकिन कुछ तो भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा ना। सो वो फंक्शन ऑफ एक्स जो भी आएगा उस पर हम ये फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज रिटन एज e raised to power mx into e raised to power minus integration of e raised to power minus m1x into e raised to power m2x integration e raised to power minus m2x into f of x into dx. So ये वाला फंक्शन हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं into dx. सो जितनी बार आपके ये लीनियर फैक्टर रिपीट होंगे या ऐड होंगे यहाँ पर, उतनी बार इस टाइप का फॉर्मूला आप लिख सकते हो। दिस इज द टाइप बी आई एक्सप्लेन यू, राइट? एंड यहाँ पर ये टाइप ए है जहां पर आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। सो जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे हमें ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है? ओके, नेक्स्ट केस, ये तो बहुत सिंपल केस है। केस 4 फाई ऑफ डी अगर हमारा सिंपली डी स्क्वायर या डी क्यूब या डी रेस टू 4 है या डी रेस टू एन भी है, इन दैट केस आपका वाई पी क्या आ जाएगा? अगर ये सिर्फ आपका फाई ऑफ डी है, फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो डी ऑपरेटेड ऑन वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फाई ऑफ डी क्या है आपका? डी है सिर्फ, d is equal to 0. इन दैट केस वाई पी क्या आएगा? 1/d ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स। एंड ये 1/d क्या है? ये है आपका इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि सिंपल d क्या है? इट इज d बाई डी एक्स। सो 1/d क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव का इनवर्स, दैट इज इंटीग्रेशन। सो अगर 1/d स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स है तो ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का। एंड ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपका फाई ऑफ डी स्क्वायर डी क्यूब के फॉर्म में है। अगर मेरे पास 1/d स्क्वायर प्लस डी है तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं लिख सकते, दो दिस फॉलोज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, सो 1/d क्यूब है तो 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन। ऐसे हम The order of integration will be equal to order of derivative differential equation. यस, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा बोल सकते हो इस केस में, फोर्थ केस में। बाकी केस में भी वैसे ही होता है, लेकिन हम वहां पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले रहे। ठीक है? Okay, ma'am. यस, सो ये है हमारे 4 केसेस जनरल मेथड की। अब इस पर बेस्ट एक ये टेबल बना के रखा है जो आपके लिए इजी होगा याद रखने के लिए। तो ये टेबल एक बार देख लेना, and it will be easy to remember the all stuff for general method through this table. अब प्रॉब्लम पर चलते हैं। few problems we already included here, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं नहीं लेती हूँ, ये प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं दूसरे प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेती हूँ जनरल पेज पर। सो जनरल मेथड के लिए हम डील कर रहे हैं एंड हमारा पहला प्रॉब्लम है, यू कैन नोट डाउन साइमल्टेनियसली, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक मिनट।
मैम ये जो 4 केसेस देखे वो सब जनरल मेथड के ही है ना, अब तक शॉर्टकट नहीं हुए ना? यस नहीं, ये चारों की चारों मेथड जनरल मेथड की ही है। हमने अभी शॉर्टकट मेथड ना स्टार्ट ही नहीं की है। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास बहुत ही प्रिसाइज फंक्शंस है। जनरल मेथड में हम कुछ भी फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, जैसे मैंने बताया कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके आ गए ऑक्सिलरी इक्वेशन के या कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स है आपके पास, इन दैट केस जनरल मेथड बहुत लेंदी हो जाती है। यस, राइट डाउन द क्वेश्चन, सॉल्व। आई एम सॉरी, मुझे टाइम बताना अगर प्रोसीड हुआ है तो। 10 तक, सॉरी 1:10 तक है क्या लेक्चर? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। आई एम ऑलरेडी एक्सीडिंग द टाइम। ओके, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम देके रखती हूँ। यहाँ पर मुझे सिर्फ बताती हूँ मैं हिंट, एंड आप ये प्रॉब्लम घर पर करके देखो, बिकॉज फ्यू सिमिलर प्रॉब्लम्स आर इंक्लूडेड इन दैट पीपीटी। अगर ये एक प्रॉब्लम भी आप कर पाए ना, ऑब्जर्विंग दैट पीपीटीज एंड ऑल, तो जनरल मेथड आपको शायद थोड़ी सी इजी लगेगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। ये है आपका प्रॉब्लम, phi of d इज इक्वल टू 0 पुटअप करके, मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन पुटअप करके आपको yc निकालना है। सो योर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द yc हियर, एंड yp निकालने के लिए आपके पास है फॉर्मूला 1/phi of d ऑपरेटेड ऑन योर फंक्शन sin of e raised to power x। तो ये है 1/d² प्लस 3d प्लस 2। लेकिन हमने कोई भी फॉर्मूला इस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए नहीं बढ़ाया, तो हमें क्या चाहिए, इसके लीनियर फैक्टर्स चाहिए। सो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके देखो, एंड फॉर्मूलाज आर विथ यू। एक बार चेक कर दो कि ये हो सकता है क्या, एंड टुमारो विल स्टार्ट विद दिस सेम प्रॉब्लम। ओके मैम। ओके। Yes. Before I conclude, let me take your attendance and we'll stop.